Hello everyone. Hello my dear students, to all my viewers and to all my dear friends. I am Avinash, the founder of Chanakya Judicial Academy, an advocate and Supreme Court of India. Today in this session, I am here before you all with the syllabus of UP Judicial Services. In the previous video, if you remember, then we had uploaded about the upcoming PCS J exam, UP PCS J exam, about the crash course for and the test series for UP PCS J. And today we are with the UP Judicial Services Prelims exam syllabus. Why we are here with the syllabus? The reason is that many people don't know what the syllabus is. जब यार एग्जाम के पहले आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा सिलेबस क्या है, देन इन विच मैनर यू शैल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड. अगर मुझे दिल्ली जाना है और मैं इधर जाने के बजाय मैं इधर जाऊंगा, मैं कितनी भी स्पीड से जाऊंगा, मैं कितने भी दिन जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा. द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. We need to understand the intricacies, the complexities of the syllabus. And once we understand that, then it will be very easier for us to come and play our shots. That is to come and go through the judgments, go through the bare acts, go through the case laws. It will be easier for us. In which manner we have to proceed forward. Right now we are having around 45 days with us, right? And in 45 days, what should be the course of action? What should be our strategy? We need to strategize ourselves, because our preparation should not be like the way say it is 1 year program, or it is 2 years program, or it is 5 months program. Exam is giving us only 45 days gap. So within those 45 days, what best foot we can put forward? That's the major question that is to be of great significance. कि इस 45 days का how to utilize it at say with the maximum capacity and with all our might, with all our heart out, right? So the first thing that I should be telling you, that UP Judicial Prelims contain 2 papers. One is paper 1, which is law, and that is of 2 hours and of 300 marks. Of 300 marks, law paper. दूसरा है जीके जीएस 150 मार्क्स 2 hours का. 150 मार्क्स 2 hours का. अभी जीके जीएस पे हम लोग बात नहीं करेंगे. जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉ बहुत बेहतर कर लेते हैं. मेरा टारगेट लॉ को लेकर के है. जीके जीएस अगर मैं लॉ को पूरे इंटेंसिटी के साथ कर जाता हूं तो जीके जीएस पे मुझे उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है. मैं नॉर्मल टाइम देकर के जीके जीएस को टैकल कर सकता हूं. लेकिन एक बार मेरा लॉ गड़बड़ हो गया, क्योंकि लॉ के आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चंस, लॉ गड़बड़ हो गया तो फिर कुछ नहीं होना जाना है. तो लॉ को पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरे ग्रेविटी के साथ हमें लेकर के चलना है. इसलिए वी हैव प्रिपेयर्ड द सिलेबस फॉर यू with the minutest of details. इस सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए हमने खुद 5 घंटे 7 घंटे समय लगाए, और तब इतनी मेहनत से इसको हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, और आपके सामने हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. पहला जो सब्जेक्ट है प्री का, लॉ का, वो है जुरिस्प्रूडेंस. जुरिस्प्रूडेंस, यू ऑल नो दैट जुरिस्प्रूडेंस इज द मोस्ट से in college, at college level, is the trickiest paper, is say most applied paper. You need to have that say maturity of legal understanding, and then only you can understand the intricacies of jurisprudence. Jurisprudence, by far everyone thinks that is the most difficult paper in law schools. But here with the prelims, jurisprudence will give you direct marks, because they ask very direct questions. नेचुरल लॉ स्कूल का बता दो, सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस का बता दो, हिस्टोरिकल स्कूल का बता दो. तो जो बेसिकली है इसे फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आएंगे स्कूल्स ऑफ लॉ को लेकर के, डेफिनेशन ऑफ जुरिस को लेकर के. अब आ गया ऑस्टिन, हु कमांड ऑफ सोवरेन.
law is a command of sovereign made by the superior being for the guidance of inferior being, and in case of non-compliance, it shall be met with the punishment in evil. So this is the statement given by the Austin. There are innumerable number of times all the different states PCS J exam and the persons who have set the paper, they have given this question that law is a command of sovereign. Who had said this? हॉलैंड ने क्या कहा था, रोस्को पाउंड ने क्या कहा था, मतलब बड़े बड़े ऑगस्ट कॉम ने क्या कहा था, बड़े जो जुरिस्ट रहे उन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी क्या है, केल्सन की थ्योरी क्या है, नॉर्म्स से क्या समझते हो, ठीक है। तो ये इन सारे चीजों पे फोकस करना है। जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स को लेकर के, डेफिनेशन ऑफ जूरिस्ट को लेकर के, जूरिस्ट के स्टेटमेंट्स का क्या रहे हैं उसको लेकर के, ट्रीटीज फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी आएगा, और इतना मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी मैं बता रहा हूं वो 45 डेज टारगेट में आप अच्छे तरीके से, पूरा सिलेबस ही है, मैं सिलेबस को छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन कैसे उसको विद इफेक्ट आप कर सकते हैं इस पे मेरा जोर है। वैसे तो यार जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो 1 साल तक आप जूरिस्प्रूडेंस ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें जज बनना है, हमें स्कॉलर नहीं बनना है, हमें विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो उसी लेवल से हम आपको बता रहे हैं। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लीगैलिटी, टुवर्ड्स लॉ। तो इससे पहला है हमारा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको पता होना चाहिए कि आईसीजे का पूरा फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कंपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट, द नंबर ऑफ जजेस, उनके सीट कहां पर है, उनका चीफ कौन है, पूरा चीज पता होना चाहिए। पोस्टमार्टम कर देना पूरा का पूरा, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ऐसे नहीं, पूरा का पूरा एकदम डील करिए आईसीजे को लेकर के, क्योंकि आईसीजे इज नॉट ओनली एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज द जस्टिस हॉल एज वेल, राइट। तो इस पे ज्यादा ध्यान से देखना है। यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन का चार्टर, यूनाइटेड नेशन अभी इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले से भी यूपी पीसीएस में हमेशा से पूछा है, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन यूएन चार्टर इस स्टेज पर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब रसिया यूक्रेन लड़ रहा है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, सारा यूनाइटेड नेशन जो आप पढ़े थे वो सब खत्म हो गया, यूनाइटेड नेशन कुछ कर ही नहीं पा रहा है। यूएन चार्टर को देखना है, द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज, जो भी ट्रीटीज है, जो भी कन्वेंशंस हैं, उसको पढ़ना है। हमने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या इनके ट्रीटीज चल रहे हैं, क्या क्या इनके कस्टम्स कन्वेंशंस चल रहे हैं, वो सब देखना है। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से कि यूनाइटेड नेशन के जो विंग्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके हेड्स कौन कौन है, इसका नाम देख लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट। न्यूज़पेपर को आप द हिंदू रेगुलर पढ़ते रहिए, और अभी ब्रिक्स का बहुत इशू चल रहा है, ब्रिक्स के बहुत मीटिंग्स हो रहे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं, ट्रीटीज हो रही हैं, तो उसको देखना है। और G20 अभी आपने देखा होगा, मोदी जी भी बड़े एक्टिव थे, नए नए कुर्ता पजामा और सूट वूट पहन करके, तो उसको भी देखना है, ठीक है। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, और जो भी आपको इंटरनेशनल लेवल पर और भी चीजें लग रही है, जैसे रसिया यूक्रेन भी है, तो इसमें यूनाइटेड नेशन, नाटो वेरी इंपॉर्टेंट, नाटो के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाटो के कारण ही सारा गेम शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन बेयर एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी जैसे कि मान लो आर्टिकल 14 है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई द राइट टू इक्वालिटी टू एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से आया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से आया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। बात समझ रहे हो आप? तो जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब भी उसी तरह से डायरेक्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए। कि देखो सीधा बेयर एक्ट के से क्वेश्चन है, नो पर्सन, आर्टिकल 21 ले लो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ
right to life and personal liberty except according to procedure established by law. This is about Article 21. तो we need to know यार कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ का मतलब क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है. अमेरिका से जो मुन्स वर्सेस इलियंस का केस आया, वहीं से इंडिया ने सबको फॉलो करना शुरू किया है. दैट राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, फुल ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट आया. तो सीधा बेयर एक्ट से क्वेश्चन है बॉस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर इसके बाद अमेंडमेंट्स, सारे अमेंडमेंट्स को लेकर के देखना है. अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला है, उसको देखना है. जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमारे चैनल पे इस पे बड़ा जबरदस्त वीडियो बना के डाला गया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. फिर है आर्टिकल बेस्ड, डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन है कि इस आर्टिकल में क्या है. इलेक्शन कमीशन किस में है, फाइनेंस कमीशन किस में है, अटॉर्नी जनरल किस में है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस में है. ठीक है. रिसेंट केस लॉज, जो भी रिसेंट इंपॉर्टेंट केस लॉज रहे हैं, बेंचेस वगैरह, जैसे कि अभी राम मंदिर का मुद्दा है, उसके बाद से यूपी में मतलब एग्जाम हुए नहीं है. आप 200% ले लो कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा. 5 जजेस, यूनानिमस जजमेंट था बॉस, और जबकि उसमें एक मुस्लिम जज भी थे, अब्दुल नजीर. 5-0 का रेशियो है. तो आपको याद रखना पूरा रामलला में पार्टीज कौन कौन थे, लॉयर्स कौन कौन थे, मैटर कब स्टार्ट हुआ था, जजमेंट में क्या बोला गया, 5 का यूनानिमस जजमेंट था, जजमेंट को प्रोनाउंस किसने किया था ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. ये सब चीज पूरा पोस्टमार्टम करिए. और हम लोग ये आप ही नहीं करिए, आप मेरे माध्यम, आप खुद कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करिए और हम कराएंगे सारा चीज. ठीक है. और जो रिसेंट केस लॉज और भी जो भी है, प्राइवेसी का राइट टू प्राइवेसी को लेकर के अडल्ट्री को अबॉलिश किया गया है, सबको देखना है. हिजाब जजमेंट, हिजाब कंट्रोवर्सी को देखना है. ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मैंने बोला ही, ये सब देखना है. द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. राइट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में यार डॉक्ट्रिन्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अब डॉक्ट्रिन्स बहुत है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, राइट, इस तरह की चीजें, कन्फेशन है, सॉरी मैं एविडेंस में चला गया. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में और भी जो मोर्टगेजेस वगैरह हैं, किस किस तरह के मोर्टगेजेस हैं, इन सबको देखना है, पढ़ना है, समझना है. इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मैंने बोला. फिर इंग्लिश कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ट्रांसफर प्रॉपर्टी में बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि इंग्लिश लॉ कुछ और कह रहा है, इंडियन लॉ कुछ और कह रहा है. तो दोनों के बीच का जो डेमार्केशन है, जो डिस्टिंक्शन है, उसको पढ़ना है और उसको समझना है. राइट. द नेक्स्ट वन इज इंडियन एविडेंस एक्ट. बेयर एक्ट से है और लगभग 90% क्वेश्चन बेयर एक्ट से आ जाते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट में सीधा अरेस्ट जेस्टे डॉक्ट्रिन को लेकर, डॉक्ट्रिन ऑफ अरेस्ट जेस्टे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, डाइंग डिक्लेरेशन, पुलिस कस्टडी, एडमिसिबिलिटी और नॉन एडमिसिबिलिटी, डिस्कवरी, एडमिशन, कन्फेशन, सारे टॉपिक्स, डाइंग डिक्लेरेशन, आप लीडिंग क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रिजम्पशन, डाउरी को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बहुत सारे क्वेश्चन से एविडेंस में डायरेक्ट आएंगे आपके, और वो सारा चीज हम लोग कराएंगे. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस. राइट. इसके बाद और बेयर एक्ट के जो इलस्ट्रेशंस है ना, इलस्ट्रेशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस लॉ में. तो इलस्ट्रेशन को एक को भी नहीं छोड़ना है. इसके बाद है हमारा आईपीसी. आईपीसी में यार चैप्टर 4, 16 एंड 17 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस आप समझ रहे हो, जैसे कि रेप हो गया, डाउरी का हो गया, असॉल्ट हो गया, स्टॉकिंग हो गया, वायरिज्म हो गया, ये सारी चीजें हैं. कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एविडेंस लॉ और आईपीसी से कनेक्ट करते हैं वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस में, जो कि डाउरी वगैरह को लेकर के, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ वगैरह. राइट. प्रिजम्पशन एज टू द नंबर ऑफ डेज ऑल्सो, बच्चा जो है कब तक माना जाएगा कि वो अपनी माँ का बेटा है, उसी फादर से उसका पैटर्निटी डिसाइड होगा. ये सारी चीजें हैं. राइट. आईपीसी में जैसे कि एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर जो टॉपिक है, सारे ऑथर्स ने लिखा है कि द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अंडर आईपीसी. तो वहां से आप मान करके चलो एक न एक इलस्ट्रेशन, 2 इलस्ट्रेशन आपको मिलना ही है, या केस लॉ से मिल जाए आईपीसी में.
जॉइंट लाइबिलिटी, कॉमन इंटेंशन, लॉफुल असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ों को देखना है, समझना है। थेफ्ट, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, किडनैपिंग है, एबडक्शन है, रॉबरी है, डकैती है, एक्सटॉर्शन है, ये सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। और छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं यार। अफरे क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। राइटिंग क्या है, नहीं पता है। उनको बस पता है कि हिंदू मुसलमान लड़ेगा तभी राइटिंग होगा। क्या है, अगर हिंदू ही लड़ जाएगा, मुसलमान मुसलमाने का माथा फोड़ देगा, 50 आदमी खड़ा है, 50 आदमी, तो क्या है, राइटिंग नहीं होगा। ये दंगा नहीं है। दंगा होने के लिए मतलब उसका धर्म देखना पड़ेगा। क्या, हमारा एपीसी धर्म नहीं देखता है, ठीक है। नेक्स्ट सीपीसी यार बहुत आसान पेपर है ये। मतलब लोगों को लगता है कि बहुत टफ पेपर है, लेकिन इसकी औकात कुछ नहीं है। ये ओवर एस्टिमेटेड पेपर है, ओवर एस्टिमेटेड, बहुत टफ है। हम तोप सिंह हैं और गोली चलाए तो गोली नहीं निकला, ठीक है। वही वाली हालत सीपीसी की। सीपीसी से बहुत लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग भी डरते थे कॉलेज में, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं, ठीक है। जैसे मतलब कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ में, अब गांव में देखो, एक पतला लड़का है, एक मोटा लड़का है। तो गांव में एक कहावत है, मोटा देख के डरिया नहीं और पतला देख के सटिया नहीं। मतलब मोटा देख करके डरने की जरूरत नहीं है कि वो आके तुमको मार ही देगा, उसमें कोई ताकत नहीं है, फूला हुआ बस। और वही चीज़ है पतला देख के सटिया नहीं। मतलब पतला देख के ये मत समझना कि उसको मार दोगे, उसका हड्डी मजबूत होगा, एक देगा मतलब सब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये मान करके चलना है कि सीपीसी का भी वही हाल है। सीपीसी दिखने में बस मोटा लग रहा है, मजबूत लग रहा है, कुछ है नहीं, ठीक है। सेक्शंस, ऑर्डर्स, सारा कुछ देखना है। सारा सलेम बार एडवोकेट एसोसिएशन सब देख लेंगे, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें, केसेस वगैरह हैं, जितना मतलब डिक्री है, फलाना ढिकाना, जो भी टॉपिक्स है, वो सारा चीज़ हम लोग सीपीसी, हमारे सर अंशुमन सर सीपीसी पढ़ाए थे। अंशुमन सर अभी ऑनरेबल जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के। अंशुमन सर, डॉक्टर अंशुमन, अगर वो देख रहे होंगे, प्रणाम है आपको सर। तो अंशुमन सर ने सीपीसी में एक बात वो बोला करते थे, सी देन पी एंड देन अगेन सी वेदर पी प्रॉपरली और नॉट पी, राइट। सीपीसी, सी देन पी एंड देन अगेन सी वेदर यू पी और नॉट पी, राइट। तो सीपीसी के यही, बस यही 3 लाइन में, और कुछ है नहीं, डरना नहीं है। और ये ऑनरेबल जस्टिस साहब कर रहे हैं तो सही हो। सीआरपीसी में यार जुरिस्डिक्शंस है, प्रोविजंस है। जुरिस्डिक्शन आप जानते हो कि कितना पनिशमेंट दे सकता है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। जुरिस्डिक्शन भी तरह तरह का है, टेरिटरी को लेकर के, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, जजेस कितना का पनिशमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, एफआईआर है, चार्जेस है, ट्रायल है, समरी ट्रायल है, एंटीसिपेटरी बेल है, ऑर्डर्स है, पुलिस डायरी है, केस डायरी है, एफआईआर है, सारा इस पे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, समरी, सारा चीज, इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट, सब पढ़ाना आपको। और सब कुछ बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस मुरेठा उरेठा बांध करके एकदम टोपी, जाड़ा, जैकेट, निहाली, कंबल सब ओढ़ के बैठ जाना है, और बाकी सारा चीज हम लोग करेंगे और करके देंगे आपको, ठीक है। बस सुनना है और देखना है हमें। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में यार सेक्शन 1 to 30 दे आर मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर रेलेवेंट। कॉन्ट्रैक्ट में एकदम ऑफर एक्सेप्टेंस से लेकर के कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, फलाना ढिकाना, सब बहुत कंसिडरेशन से। तो मान लो कि क्वेश्चन आएगा, कोई चीज डाक से भेजा गया, टेलीग्राम किया गया, वो एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, ऑफर कब माना जाएगा, कब कंप्लीट माना जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, सब इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से मिलेंगे, सीधा इलस्ट्रेशन से उठा करके क्वेश्चन दे दिया। सेक्शन 23 में वेजरिंग में कंटिजेंसी का डिफरेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। सेक्शन 56 में नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब देखना है। बेलमेंट है, प्लेज है, राइट, इंडेमनिटी है, गारंटी है, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है। सबका पोस्टमार्टम कर देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक देंगे एकदम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, फिर रूल्स एंड डॉक्ट्रिन्स है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। जितना भी फ्री कंसेंट, जितना भी एसेंशियल्स है, व्हाट एवर द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
जो भी एसेंसेस है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, सारा केस लॉ वगैरह को लेकर के जो आप पढ़ते हैं, केस लॉ, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सबसे बड़ा केस लॉ कौन सा है, उस केस को पढ़ना है। फिर उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कोअर्सन, सब पढ़ना है। ठीक है, सारा चीज देखेंगे ध्यान से, एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और सारा चीज हम लोग कवर करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट में ही ऑफर से बहुत बार लोग छोड़ देते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह। और एक चीज देखो मेरे दिमाग में भी आ गया, बहुत बार इंडिया में पीसीएसजे में, खास करके नॉर्थ में, क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये एक्ट आया कब, इंप्लीमेंट किस दिन हुआ, किस तारीख को हुआ। ये याद रखना है सारे में, जितने सब्जेक्ट्स अभी हमने बोला है। ठीक है, प्रिंसिपल्स, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट में भैया यही सब है। और सारा टॉपिक हमने लॉ का कवर कर दिया इसमें। अब न्यू टॉपिक्स एडेड में क्या क्या है, जो थोड़ा बहुत जो छोटा छोटा टॉपिक एकदम लास्ट का बचा है, इंसिडेंटल टॉपिक्स, वो बता देता हूं। टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस टू पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स एंड ऑफेंसेस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस पे है, आप सब लोग जानते हैं कि डिजेबिलिटीज, मोदी जी ने भी विकलांग को चेंज करा के उनको इज्जत देने के लिए, उनको स्वाभिमान का, गौरव का एहसास कराने के लिए दिव्यांग नाम दिया गया। और दिव्यांग पे सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, और इसी के कारण से डिजेबिलिटीज को लेकर बहुत सारे पॉलिसीज और रूल्स बन रहे हैं। तो इसको देखना है, समझना है। वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से भी था। आर्टिकल 15 देख लो, आर्टिकल 16 देख लो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस का, कुछ भी हो, उसके लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है कि वीमेन एंड चिल्ड्रन को अलग से उनके एडवांसमेंट के लिए मिलेगा रिजर्वेशन भी। ठीक है, तो वीमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर तो पहले से भी है ही है। फिर है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद अगेन डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटीज को छोड़ना नहीं है। फिर है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 एंड डाउरी एक्ट। डाउरी एक्ट का तो यार पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। जो प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ है, उस समय भी एविडेंस में भी और आईपीसी में भी 304 के बाद जो भी आपका है 304B वगैरह, वो सबको हम लोग 4A में, B में, जो भी चीजें जहां जहां भी हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो, उसको हम लोग ध्यान से करेंगे और रिलेट करके करेंगे। अगर जहां पर दो लॉ एक दूसरे से टच कर रहा होगा, टकरा रहा होगा, तो वहां पर हम लोग उसको भी कवर करेंगे, ताकि क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट, आई हैव कवर्ड द एंटायर सिलेबस विद द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स। राइट, एंड नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. How to dribble the ball, now it entirely depends upon you. Right, give us those 45 days and we will give you the result of your judicial prelims, and after the prelims gets over, then we shall be having sufficient time to go for mains. Right, so don't miss the bus. This is a last call to each one of you. We are starting our classes from 28th. Right, online also, offline also, you can join us. ऑनलाइन भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और ये गारंटी मैं तब दे रहा हूं जब मैं 13 साल से इस फील्ड में हूं, लॉ इंडस्ट्री में हूं, फ्रेटर्निटी में हूं, और हमने 431 जजेस बना दिए। राइट, 431 जजेस। तो मेरी बात पे तो विश्वास करना जायज है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।